Hello everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to this week's most important topic. तो इस हफ्ते का इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद रिगार्ड टू द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। हमको पता है हाल ही में हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो थे जगदीप धनकर, ही हैज रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस और इस हफ्ते का न्यूज है कि नए इलेक्शंस कंडक्ट होने वाले हैं ऑन सितंबर 9th 2025. Okay, so the office of the vice president, the elections of that will happen on 9th September. This is the current news that we have this particular week. So let us see everything about the elections of the vice president. Okay, तो पहले अगर हम देखते हैं why is this particular thing in news? It's because vice president जो थे जगदीप धनकर, he has resigned from the office. He was 74 years of age. And why did he resign from the office? इन्होंने कहा है कि उनके कुछ health reasons हैं, health concerns हैं. Alright, so let's understand about the vice president, some facts that we have to know. Firstly, जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं, इनका नाम है सर्वपल्ली राधाकृष्णा. ही वॉज द वाइस प्रेसिडेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 13th May 1952 जब उन्होंने ओथ लिया. नेक्स्ट, द लॉन्गेस्ट सर्विंग वाइस प्रेसिडेंट कौन है? दैट इज मोहम्मद हमीद अंसारी. ठीक है, ही वॉज सर्विंग फ्रॉम 2007 to 2017. तो दो वाइस प्रेसिडेंट्स के अंदर इन्होंने सर्व किया है. Further, the post of the vice president, ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है? That is taken from the US Constitution. Further, जगदीप धनकर जो है, he is the third ever vice president to have resigned from the office, यानी उनके टर्म कंप्लीट होने से पहले. Which are the vice presidents that have resigned? So जगदीप धनकर के पहले और दो है. We have VV गिरी and R वेंकटरमन. तो VV गिरी एंड R वेंकटरमन की अगर हम बात करें, दोनों ने रिजाइन किया था फ्रॉम द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट बिकॉज दे वांटेड टू कंडक्ट और दे वांटेड टू कंटेस्ट इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट इलेक्शंस में उनको भाग लेना था. Right, so Jagdeep Dhankar is the third such person to resign from the office. Now let's understand why is this post important? What is the importance of the vice president? तो वाइस प्रेसिडेंट हमको पता है ही इज ऑल्सो द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. राइट, ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. हमको पता है देयर आर टू हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा. लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर का नाम क्या है? इट इज स्पीकर. राइट, एंड राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर का नाम है चेयरमैन. तो याद रखना, चेयरमैन इज नन अदर देन द वाइस प्रेसिडेंट हिमसेल्फ एंड स्पीकर जो है he is elected from amongst his office. वो एक separate post है, constitutional post है. and हम देखते हैं अभी कौन है ये? This is ओम बिरला. Is that clear? Remember, this office or this post is also the second highest. vice president का जो post है, it is the second highest constitutional authority in India. First है president. president के बाद जो next important post है, वो है हमारे vice president का. Now, he is not a member of any house or a state legislature, okay, but vice president का ये एक ड्यूटी होती है ताकि जो proceedings हो in the upper house, right, that should be done in a smooth and efficient manner. तो to conduct the affairs of the Rajya Sabha, ये एक important role play करते हैं. Now, मान लो कि प्रेसिडेंट की डेथ हो या रेजिग्नेशन हो, रिमूवल हो, या they cannot perform their duties. In that case, vice president takes over the duties of the president. Okay, तो ये एक दूसरा पार्ट है. जब president absent है, तो vice president will take on the powers, and तभी he will not perform the duties of the vice president. यानी कि he will not be the chairman of the Rajya Sabha in that case. जब वो fulfill करते हैं अपने duties as a president. Is that clear? So vice president temporarily assume करते हैं until जब तक नया president नहीं आता. ऐसा नहीं कि forever. For the time being, he will perform the duties of the president and उसके बाद एक नया president चुन के आता है and then he goes back to being the chairman of the Rajya Sabha. Is that clear? Further, हम देखते हैं कि कौन बन सकता है a vice president. So it's given in the constitution under Article 67. तो आर्टिकल 67 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है ही कैन रिजाइन एनी टाइम बाय सबमिटिंग अ रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट. यहां पे ध्यान रखना
कि वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन कर रहा है तो प्रेसिडेंट को देगा, बट अगर प्रेसिडेंट रिजाइन कर रहा है तो वो किसको देगा, वो देगा वाइस प्रेसिडेंट को। ओके, सो अपने आप में ही वो रेजिग्नेशन लेटर्स देते हैं, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को देता है, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन लेटर देता है। नाउ once accepted, the resignation takes immediate effect. Okay, the resignation takes immediate effect and only फॉर्मल कम्युनिकेशन एक्नॉलेजमेंट, यहाँ पे अप्रूवल की जरूरत है कि हाँ हम आपका अब रेजिग्नेशन अप्रूवल, ऐसा सब कुछ नहीं होता, वो इमीडिएट इफेक्ट में आता है। एंड फर्दर इमीडिएट इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं, यू डोंट हैव एनी टाइम पीरियड कि कब तक होता है एंड सो ऑन। सो लेट्स अंडरस्टैंड सम मोर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स विद रिगार्ड टू द इलेक्शन प्रोसेस। इज दैट क्लियर? तो इलेक्शन की बात करें, द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय, रिमेंबर, बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। एंड यहाँ पे क्या नॉमिनेटेड मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स ऐसा कुछ है? द आंसर इज नो, दे आर ऑल द मेंबर्स दैट वी टॉक अबाउट। सो ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, जो अभी कब होगा? 9 सितंबर को होगा, एज अनाउंस अ फ्यू डेज अर्लियर। नाउ यहां पे याद रखना, स्टेट लेजिस्लेचर परफॉर्म नहीं करती एज कंपेयर टू द प्रेसिडेंट। अगर आप प्रेसिडेंट की इलेक्शंस की बात करते हैं, यहां पे ओनली इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, राइट, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट, बट वाइस प्रेसिडेंट में नहीं, सिर्फ लोकसभा राज्यसभा, वो भी सभी मेंबर्स नॉमिनेटेड हो इलेक्टेड हो कोई बात नहीं। वरस यहाँ पे प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में ओनली इलेक्टेड वाले मेंबर्स यहाँ पे पार्ट लेते हैं। ओके, नाउ ये जो वोटिंग होता है दैट हैपेंस थ्रू अ सीक्रेट बैलेट। ओके, इट हैपेंस थ्रू अ सीक्रेट बैलेट, और जो प्रोसेस होता है इट इज कॉल्ड एज proportional representation. Okay, proportional representation with single transferable vote. Now I'll just give you a gist of how it works. जैसे कि अगर 4 कैंडिडेट है A, B, C और D, ठीक है, 4 कैंडिडेट है, यू गिव अ प्रेफरेंस एज टू व्हाट यू वांट, कि मुझे C पसंद है, फिर मुझे B पसंद है, फिर मुझे A पसंद है और उसके बाद D। तो सभी मेंबर्स अपने अपने प्रेफरेंसेस देते हैं, राइट। सो ये प्रेफरेंशियल वोटिंग होगा, प्रेफरेंसेस देते हैं, मतलब मान लो कि सबने D को एकदम से लो वोट दिया है, ऑल मेंबर्स हैव गिवन D द मोस्ट लीस्ट वोटिंग, तो D को जिसने 1 पे रखा है उनके वोट्स भी ट्रांसफर होते हैं दूसरों को। मतलब इमेजिन मी गिव डी नंबर 1, ओके, सो डी के बाद मैंने नंबर 1, 2 को दिया है मैंने यहाँ पे, ओके, से सी, तो मेरा जो नेक्स्ट वोट जो सी को दिया था वो अभी ट्रांसफर होगा किसी को, द नेक्स्ट पर्सन दैट आई हैव गिवन। सो डी इज आउट ऑफ द रेस, राइट, डी आउट है, तो सेकंड जिसको मैंने प्रेफरेंस दिया वो मेरा अगला बंदा हो सकता है कि मुझे ये पसंद है, तो इसलिए तुम प्रेफरेंसेस देते हो। सो दैट इज व्हाई, और दैट इज हाउ द कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ वोटिंग इज, कि हम प्रेफरेंस देते हैं, हम डायरेक्टली आउटराइट किसी को रिजेक्ट नहीं करते। नाउ वंस दैट इज डन, we have equal voting or weightage for these votes. कैंडिडेट सबसे ज्यादा जिसको प्रेफरेंस मिलता है, मान लो कि हमारे केस में सी को सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं, प्रेफरेंसेस मिले हैं, तो सी हमारा एस्पेक्ट विनर होता है। ओके, सो नाउ इफ नो कैंडिडेट रीचेस द कोटा, ओके, जो फर्स्ट फ्यू प्रेफरेंस वोट जो है ये एलिमिनेट होता है एंड वो रीडिस्ट्रीब्यूट होता है। एग्जैक्टली व्हाट आई सेड, डी इज आउट ऑफ द रेस बिकॉज डी को सबसे कम मिला है, तो डी वोट ने जो जिसने किया है उसका नेक्स्ट वोट कौन है उसको वो ट्रांसफर होता है। सो दैट इज द एस्पेक्ट, द सेकंड प्रेफरेंस डी का किसको मिला है उसको जाता है, ठीक है, एंड दिस इज द होल प्रोसेस दैट वर्क्स। ओके, याद रखना यहाँ पे कोई टाइम पीरियड नहीं है, इन इमीडिएट इफेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, जल्दी से जल्दी तुमको कंडक्ट करना है एज अपोज टू योर प्रेसिडेंट इलेक्शन जहां पे 6 मंथ्स का तुमको बैंडविड्थ दिया है। Further, Constitution does not provide for an acting vice president, तो तब तक ये पोस्ट खाली रहती है। तो फिर अगर चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा कौन होगा, फिर चेयरमैन होगा डेप्यूटी। डेप्यूटी कौन? डेप्यूटी चेयरमैन। So can you name the person who is currently the deputy chairman of Rajya Sabha? Who is the current or deputy chairman of the Rajya Sabha जो यहाँ पे अभी पोस्ट कंप्लीट कर रहे हैं of the chairman?
However, since the vice president is also the ex officio, as we see, okay, मैंने आंसर ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया है वैसे, हरिवंश नारायण सिंह, okay, he will preside on the office in the absence of the vice president. Now, as we have already seen, there is no such timeline immediately या as soon as possible. यहाँ पे आपको elections conduct करने हैं. Constitution कोई deadline set नहीं करता. That means as soon as the vice president का office empty है, you need to create elections for the same. तो अभी यहाँ पे returning officer है PC Modi. They are the ones that are conducting the elections, overseeing the elections. और यहाँ पे elections कौन conduct करता है? The Election Commission of India. Remember, Election Commission of India conducts the elections of Lok Sabha, Rajya Sabha, President, Vice President as well as State Legislative Assembly. ये सभी के elections Election Commission of India करते हैं. As compared to पंचायत and municipalities, it is the State Election Commission जो यहाँ पे conduct करता है. So elections conduct करते हैं under which act? It is the Presidential and Vice Presidential Elections Act of 1952. तो जब नया वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है विद रिगार्ड टू वैकेंसी, क्या उनको पूरे 5 इयर्स मिलते हैं कि बचे कुछ जो साल रिजिग्नेशन के बचे थे वो मिलते हैं? मतलब फॉर एग्जांपल, जब जगदीप धनखड़ वाज द वाइस प्रेसिडेंट इन 2022 में वो इलेक्ट हुए थे, तो इनका टर्म 5 साल का होगा, यानी कि 2027 तक होगा, राइट? तो अभी लेकिन 2025 में ही हैज रिजाइन. तो क्या वो नया वाइस प्रेसिडेंट जो अभी इलेक्ट होगा सितंबर 9 को, will he be for the whole term or will he be there for only 2 years? The answer is no, he will be there for 5 years proper, यानी 2030 तक इनका कार्यकाल होगा. ठीक है, his term will be for proper full 5 terms, not the remaining period, not the remainder. Is that clear? तो ये आपको याद रखना है. Now this week's question of the week. Okay, before doing the question, I just have one more aspect कि अगर मान लो इसको remove करना होता तो, ओके, रिमूव करना होता है, देन वी विल ऑल्सो सी दैट एस्पेक्ट. अभी तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन किया, बट अगर इनको रिमूव करना होता, देन हाउ कुड वी रिमूव हिम? इज इट बोथ द हाउसेस पार्टिसिपेट? व्हाट डज इट वर्क? देखिए, इवन दो द वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, यहाँ पे इनके रिमूवल के लिए दोनों हाउसेस पार्टिसिपेट करती है, यानी कि लोकसभा भी एज वेल एज राज्यसभा भी. Is that clear? Lok Sabha as well as Rajya Sabha. But remember, Rajya Sabha will have more powers. So Rajya Sabha का voting जो अगर हम देखते हैं, it is usually that happens is the effective majority. ना आपको यहाँ पे effective majority के पता होना चाहिए. What do you mean by effective majority? Effective majority का मतलब है when we have 50% of the votes, okay, 50% of the votes, but of the total membership, okay, 50% of the total membership minus the vacant seats, अभी इसका मतलब क्या है? अगर मैं सिर्फ टोटल मेंबरशिप बोलती, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी. एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मतलब मान लो क्लास में 100 बच्चे हैं, ओके, तो 100 बच्चों में अगर मैं 50% दूं तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी. बट मान लो 100 बच्चों के बाद हम देखते हैं कि कुछ बच्चे बोलते हैं कि मुझे क्लैट नहीं करना है, या वो रिजाइन करते हैं कि मुझे आगे कंटिन्यू नहीं करना है, और कुछ सीट्स यहाँ पे वेकेंट हो जाती है. तो मान लो अभी मेरा 90 हो गया, 10 लोग प्रोबेबली छोड़ के गए या क्लैट नहीं करना या शिफ्ट हो गए, तो अभी का एक्चुअल स्ट्रेंथ है, द एक्चुअल एक्टिव मेंबर्स 90. ओके, तो 90 में अगर मैं 50% लू, ओके, विच विल बी 45 प्लस 1, 46 मेंबर्स ऑलमोस्ट, ये होगा मेरा इफेक्टिव मेजॉरिटी. तो फिर सिंपल मेजॉरिटी क्या होगा? फिर सिंपल मेजॉरिटी is those that were present and voting on that day. मतलब मान लो ये 90 मेंबर्स में से ही probably आपके सिर्फ 50 people are come in class. Only 50 people are present. तो 50% का 50%, 50 लोगों का 50% is simple majority. Is that clear? तो
सभी मेंबर्स का होता है तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, वेकेंट को छोड़ के अगर मेजॉरिटी होता है तो है इफेक्टिव मेजॉरिटी, कुछ उस दिन में प्रेजेंट और वोट कर रहे हैं उनका अगर मेजॉरिटी होता है तो वो सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, सो इफेक्टिव मेजॉरिटी है राज्यसभा की और लोकसभा का है अप्रूव्ड होता है तो ये बस सिंपल मेजॉरिटी। तो दोनों पार्टिसिपेट करते हैं अगर रिमूव करना है वाइस प्रेसिडेंट को, बट याद रखना इफेक्टिव मेजॉरिटी फॉर राज्यसभा यानी 50 मेंबर्स दैट इज टोटल मेंबर्स माइनस द वेकेंट सीट्स, एज वेल एज लोकसभा का सिंपल मेजॉरिटी यानी 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, एंड दिस इज हाउ यू कैन इवन रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट। So this is all with regard to the post of the vice president. Now we will see the question of the week. इस हफ्ते का question of the week है Who was the first deputy chairman of the राज्यसभा? इस बार का तो डेप्यूटी चेयरमैन मैंने बता दिया है, हरिवंश नारायण सिंह। तो यहाँ पे आपको देना है कि फर्स्ट चेयरपर्सन कौन रहे हैं ऑफ द राज्यसभा। So that is all with regard to this week's most important topic. I hope you have understood the topic. If you have any questions or any feedback, use the comment section to answer. Thank you so much for watching.